Hello students, how are you? I'm fine. Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. Okay, so in this lecture we are going to solve the probability concept and the probability chapter for class 12. And I think in the last lecture we had discussed law of total probability. Okay, and I think this same concepts will be repeated and the same concept questions will be done in this lecture also, because this lecture is this concept, law of total probability concept, is very important, and I think you need to solve more and more questions regarding this concept and relating these concepts as well. Okay, so that you can face the Bayes theorem. And I think in every board one question used to come from the Bayes theorem, and that's why this Bayes theorem is totally based on this law of total probability concept. That means if you have the clear idea and the clear concept regarding this law of total probability, then I think this Bayes theorem concept questions can be attempted. Okay, so just I am trying more and more to make you confident in this law of total probability concept. That's why just we are solving the more questions from this concept as well. Okay, so just write the first question. Okay, there are two bags. One of which there are two bags, one of which contains. There are two bags, one of which contains 3 black, 4 white. 3 black, 4 white ball. Okay, and other one contains 4 black and 3 white ball. Okay, a fair die is thrown. Okay, a fair die is thrown. If the face 1 or 3 turns up, if the face 1 or 3 turns up, a ball is taken from the first bag. A ball is taken from first bag. ठीक है, first bag. If any other face turn up, any other faces turn up, then a ball is chosen from the second bag. Then a ball is chosen from second bag. That means आपके पास 2 बैग है. ठीक है, एक बैग में 3 ब्लैक 4 व्हाइट, 3 ब्लैक 4 व्हाइट. दूसरा बैग है उसमें 4 ब्लैक 3 व्हाइट. इसमें ये B2 है. दैट मीन्स 2 बैग है. फिर पहले तो मुझे बैग चूज करना है. वी हैव टू चूज बैग्स फर्स्ट. आफ्टर चूजिंग द बैग we have to draw one ball, I think second bag. Find the probability of choosing a black ball. Find the probability
ऑफ चूजिंग ब्लैक बॉल। ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। चूजिंग अ ब्लैक बॉल, दैट मीन्स वन ब्लैक बॉल इज टू बी ड्रॉन एंड दिस ब्लैक बॉल, I think this black ball it is comprised in the first bag as well as in the second bag. Okay, so now question is that from which bag this particular ball was drawn? Okay, because यहाँ पर first bag में से भी black ball draw कर सकते हैं हम लोग, second bag में से भी हम लोग black ball draw कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो मुझे बैग चूज करना होगा। अगर मैंने फर्स्ट बैग चूज किया तो फर्स्ट बैग का हिसाब पहले होगा, और मैंने सेकंड बैग चूज किया तो सेकंड बैग के ऊपर हिसाब होगा, है कि नहीं। अब फर्स्ट बैग मुझे चूज करना है तो फर्स्ट बैग चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चंस में दो बैग है, अच्छा ठीक है, एक बैग मैंने चूज किया हाफ, दूसरा बैग मैंने चूज किया हाफ, ऐसे लिखते थे, है कि नहीं। यहां पर तो उस क्वेश्चंस में कुछ गिवन नहीं था, इसलिए हम लोगों ने दो बैग में से एक बैग चूज करना है, इसे हाफ हाफ निकाल लिया। बट यहां पर एक चीज दिया हुआ है, ठीक है, देखो, ए फेयर डाई इज थ्रोन इफ द फेस 1 और 3, दैट मींस 1 आया या फिर 3 आया, तब आपको फर्स्ट बैग चूज करना है। तो दैट मींस फर्स्ट बैग चूज करने के लिए डाई में 1 और 3 आना चाहिए, तभी तो फर्स्ट बैग चूज करेंगे। तो दैट मींस फर्स्ट बैग चूज करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, वो प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डाइस के ऊपर। डाई अगर यहाँ पर 1 और 3 शो करेगा तो आप फर्स्ट बैग चूज कर सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं, देखो, हियर A equals to black ball is chosen. E1 equals to first bag is chosen. E2 equals to second bag is chosen. Obviously बैग तो मुझे पहले चूज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बाकी देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है P of E1 पहले तो हम लोग हाफ लिख देते थे, क्योंकि दो बैग है, दो बैग में से एक बैग चूज करना है तो हाफ होता है प्रोबेबिलिटी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया कि आप फर्स्ट बैग चूज करेंगे कब, जब डाई में 1 और 3 आए। तो दैट मीन्स फर्स्ट बैग चूज करना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डाई के ऊपर। डाई में अगर 1 और 3 आया, दैट मीन्स डाई में तो टोटल आउटकम 6 होता है, ओके। उसमें से फेवरेबल इवेंट कितना है, 1 या फिर 3, 2 होता है, दैट मीन्स 2/6, 1/3। P of E2 क्या होगा, P of E2 है if other numbers turns up, that means 1 और 3 के अलावा बाकी जो है नंबर्स डाई में, वो अगर आया टर्न्स अप, मतलब क्या है, मतलब टर्न्स अप मतलब है जैसे मतलब आया 1 और 3 आया, दैट मीन्स रिजल्ट टर्न्स अप, ठीक है। सो बाकी जो नंबर्स है, बाकी कितना नंबर्स है, 4 नंबर्स है। 1 और 3 के अलावा क्या क्या नंबर है, 2, 4, 5, 6। अगर 2, 4, 5, 6 आया, दैट मीन्स 4 नंबर आया आउट ऑफ 6, तब आपको सेकंड बैग चूज करना है। सो दैट मीन्स ये 2/3। दैट मीन्स यहाँ पर ये बैग चूज करना ये डाई के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए डाई का जो प्रोबेबिलिटी होगा वही बैग चूज करने का प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। नाउ P of A/E1, दैट मीन्स यहां पर E1 मतलब क्या है, फर्स्ट बैग मैंने चूज किया, ठीक है। अब फर्स्ट बैग में से ए इवेंट क्या है, ब्लैक बॉल इज चूजन। 1 ब्लैक बॉल है ना, एक ही ब्लैक बॉल चूज करना है। तो यहां पर E1 दैट मीन्स क्या है, फर्स्ट बैग मैंने चूज किया। अच्छा, फर्स्ट बैग में टोटल बॉल कितना है, फर्स्ट बैग टोटल बॉल कितना है, 7, ठीक है। तो उसमें ब्लैक बॉल कितना है, ब्लैक बॉल 3, दैट मीन्स 3/7। P of A/E2 ये कितना होगा, A/E2,
सो दैट मीन्स सेकंड बैग आपने चूज किया, E2 मतलब क्या है, सेकंड बैग चूज किया। सेकंड बैग में टोटल बॉल कितना है, 7, उसमें से ब्लैक बॉल कितना है, 4। ठीक है, P ऑफ A बाई E1, P ऑफ A बाई E2 निकल गया। सो P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। बस वैल्यू बिठा दो, P ऑफ E1 दैट मींस 1/3 इंटू P ऑफ A बाई E1, A बाई E1 दैट मींस 3/7 प्लस 2/3 इंटू 4/7 दैट मींस यहाँ पर 3 थी तो कैंसिल, और यहाँ पर तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। 1/7 प्लस 8/21, सो दैट मींस 11/21, ये होगा आपका फाइनल आंसर। That means this the probability of choosing the black ball is 11/21। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेटमेंट आपको लिख के देना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 जाओ। ठीक है, फिर बैग का नाम ए है। बैग ए कंटेन्स 4 ब्लैक 6 रेड। Bag A contains 4 black 6 red, 4 black 6 red balls, and bag B contains bag B contains 7 black 3 red, 7 black 3 red balls। ठीक है, a die is thrown, a die is thrown, then a die is thrown, इसके बाद a die is thrown if 1 or 2 appears, if 1 वो उसी टाइप का क्वेश्चन है, 1 or 2 appears then first bag is chosen। I think बना के लिख लिया होगा। ठीक है, बना के लिख लिया। फर्स्ट बैग मतलब a bag। if other numbers turns up, then bag B ठीक है, ये फर्स्ट बैग नहीं, then a bag B is chosen। ठीक है, आपने चूज कर लिया। if 2 balls are drawn at random, if 2 balls are drawn at random, then find the probability, that one is black and one is red। ठीक है, यहाँ पर 2 बॉल्स ड्रॉ किया गया है, एक से ज्यादा बॉल ड्रॉ कर लिया है, दैट मींस यहाँ पर तो आपको कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। मैंने बोला था लास्ट दिन कि आपको एक बॉल अगर चूज करना है, एक बॉल, एक कार्ड या फिर एक किसी भी चीज को आपको अगर ड्रॉ करना है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर 2 कार्ड, एक से ज्यादा आपको अगर ड्रॉ करना है या फिर उससे 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा किसी भी चीज का अगर प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है तो कॉम्बिनेशन तो यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इवेंट्स यहाँ पर पहले जैसे ही होगा।
ठीक है, पहले जैसा, जैसे हियर a इक्वल्स टू ऐसे लिखो 1 black and 1 red ball are chosen. बस ये है ए इवेंट. E1 क्या होगा? बैग ए इज चूजन. बैग ए इज चूजन. E2 क्या होगा? बैग बी इज चूजन. ठीक है, तो P ऑफ E1 क्या होगा? वही होगा सेम. इफ 1 और 2 अपियर हुआ दैट मीन्स 2/6 होगा, दैट मीन्स 1/3 पहले जैसा ही होगा. P ऑफ E2 क्या होगा? 4/6 दैट मीन्स 3/2. ठीक है, अब आओ देखो यहां पर थोड़ा ड्रॉ कर लो. बैग इसमें क्या होगा? बैग 4 ब्लैक 6 रेड. इसमें क्या है? 7 ब्लैक 3 रेड. ये बैग 1, ये बदल मीन्स ये ए बैग और ये बैग बी. ठीक है, अब आओ. अब यहां पर कितना बॉल ड्रॉ करना है? 2 बॉल ड्रॉ करना है. P ऑफ A/E1 मतलब आपने बैग 1 दैट मीन्स फर्स्ट बैग A, you have chosen this bag A. Okay, now if you have chosen this bag A, then from this bag A how many balls should be drawn here? 2 balls should be drawn. तो बैग A में टोटल बॉल कितना है? 10 बॉल्स हैं, है कि नहीं? तो 10C2 तो होगा नीचे. ठीक है, ऊपर फेवरेबल विंड. अब आपको बैग 1 में देखना है. बैग 1 में से कितना, मतलब 1 ब्लैक बॉल 1 रेड बॉल ड्रॉ करना है. 1 ब्लैक बॉल 1 रेड बॉल. अच्छा, अब बैग फर्स्ट बैग में आपको देखना है कि ब्लैक बॉल कितना है, रेड बॉल कितना है. ब्लैक बॉल कितना है यहां पर? 4 ब्लैक बॉल्स, इट मीन्स 4C1 एंड मतलब इनटू और किस 1 रेड बॉल दैट मीन्स 6 रेड बॉल्स हैं, दैट मीन्स 6C1, है कि नहीं? सो दैट मीन्स यहां पर अगर मैं कैलकुलेशन करूं 4 into 6 by 10C2. अच्छा 10C2 लिख लो, ये बाद में शायद ये कॉमन ले लो. ठीक है, P ऑफ A/E2. ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड बैग. सेकेंड बैग में टोटल बॉल्स यहां पर देखो 10 ही है, 10C2. 2 बॉल चूज करना है, टोटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. फेवरेबल में जब आओगे तभी आपको एक ब्लैक बॉल एक रेड बॉल ड्रॉ करना है. तो सेकेंड बैग में ब्लैक बॉल टोटल कितना है? 7. ड्रॉ कितना करना है? 1, 7C1 एंड मतलब इनटू कितना रेड बॉल है? 3. उसमें से ड्रॉ कितना करना है? 1. दैट मीन्स 7 into 3 by 10C2. दैट मीन्स 21/10C2. सो बस P ऑफ A बिठा दो. P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ E1 into P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 into P ऑफ A/E2. बस ये सब वैल्यूज बिठाओ, है कि नहीं? P ऑफ E1 मतलब 1/3 into A/E1 मतलब यहाँ पर A/E1 24/10C2, है कि नहीं? 24/10C2 प्लस फिर वो क्या होगा? सॉरी ये तो 2/3 है, 2/3 है. सो दैट मीन्स 2/3 into 21/10C2. तो इसका कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो करके इसका आंसर जो है ऐसा आएगा 22/45. ये आंसर आएगा. ओके, कैलकुलेशन करो, 10C2 को तोड़ो. हाँ, तोड़ने के बाद ये 22/45 इस टाइप का कुछ आंसर आपको मिलेगा. ठीक है, हाँ. देन go to the next question. This law of total probability questions are very interesting, and I think all of these questions are practically attached. Okay, so just every time just you will see that means you can see in all questions just the practical work and this practical actually these experiences are being counted.
Just you are drawing the balls from the container, from a bag, from this, okay. So these are all the practical examples, okay. So in the next question we will see the another question, okay. Now in a bolt factory, bolt not bolt, okay, in a bolt factory, machine ABC manufacture respectively. In a bolt factory, machine A, B and C manufacture respectively, manufactures 25%, फिर 25, 35, 40, 25, 35 and 40% respectively, okay. Of the total balls, okay. Of their output, some bolts are defective, okay. So defective quantities of output 5%, 4% and 2%. Output 5%, 4% and 2%, okay. Are respectively defective bolts, okay. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है, a bolt is drawn at random. A bolt is drawn at random. अब बोल्ट ड्रॉ किया गया है, वो डिफेक्टिव है कि वो तो हम लोग नहीं जानते ना. तो a bolt is drawn at random from the product. At random, find the probability that this bolt is defective. That means here three manufacturer A, B, C, and this manufacturer they are producing this bolts, nut bolts, okay, and this their quantity is 25%, 35% and 40%, okay, of the total quantity. अगर यहाँ पर टोटल क्वांटिटी जितना भी बोल्ट प्रोड्यूस हुआ है उसका 25% ए ने किया है, 35% बी ने किया है, 40% सी ने किया है, ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पर बोल्ट तो बनाया गया टोटल 25%, उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकल गया. इतना डिफेक्टिव है मशीन ए, दैट मींस ये मैन्युफैक्चर, ये जो मशीन है 5% बनाया है, मशीन बी 4%, मशीन सी 2% बनाया है डिफेक्टिव. अब आपने क्या किया, वन बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, दैट मींस एक बॉल आपने ड्रॉ किया. नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्टिकुलर बोल्ट विल बी डिफेक्टिव. दैट मींस जो बोल्ट आपने ड्रॉ किया है वो डिफेक्टिव बोल्ट निकला. दैट मींस यहाँ पर फेवरेबल इवेंट क्या होगा कि आपने एक डिफेक्टिव बोल्ट ड्रॉ किया है, ओके. सो जस्ट इवेंट ए इक्वल्स टू, here A equals to a defective bolt is drawn. E1, E2, E3. यहां पर क्या होगा, ये तो फेवरेबल में तो डिफेक्टिव बोल्ट चला गया. इवेंट क्या होगा, E1, E2, E3. जैसे क्या होगा, ऐसे bolts manufactured
मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, balls manufactured by P, balls manufactured by C, है कि नहीं? ये तीन इवेंट है। पहले तो बोल्ट प्रोड्यूस होगा, उसके बाद डिफेक्टिव का केस फेवरेबल होगा। तो तीन मशीन बोल्ट बनाता है, उसको ही मैंने ले लिया है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर देखो E1 क्या होगा, टोटल बोल्ट E1 कितना बनाया गया, परसेंटेज नो 25%। ये परसेंटेज तो खुद ही एक प्रोबेबिलिटी है कि नहीं? 25%, फिर 35% और यहां पर 40%, ठीक है। सो P ऑफ E1 क्या होगा, 25% है ना, दैट मीन्स 100 में से 25 इसने बनाया है कि नहीं। फिर P ऑफ E2 35/100, P ऑफ E3 40/100, ठीक है। टोटल 100 वोल्ट है, प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही निकालते हैं, है कि नहीं। परसेंटेज खुद ही एक प्रोबेबिलिटी है। परसेंटेज क्या है, टोटल 100 में से 25 बनाया है कि नहीं। टोटल यहाँ पर 100 है और एने बनाया कितना, 25, इसलिए तो 25% है। तीनों मिलकर देखो 100% है ना, 25 35 दैट मींस 60 प्लस 40 100% दैट मींस ओवरऑल। तो उसमें से 25% एने बनाया है, तो कितना प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 25/100, ठीक है। सो P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3 आपका मिल गया। नाउ P ऑफ A by E1, ठीक है, 544 है, डिफेक्टिव क्या है 544, लिख के रखते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ यहां पर P ऑफ A by E1, इसका मतलब क्या है, E1 मतलब क्या है, मशीन ए ने बनाया है कि नहीं, और ए क्या है, डिफेक्टिव बोल्ट्स। तो क्वेश्चन में तो ये बोला ही गया था शायद, ये 3 पीसेस जो है डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं, 3 पीसेस जो है डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं। 5% किसने बनाए, मशीन ए ने। 4% किसने बनाए, मशीन बी ने। फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, 5%, 4%, 2%, यस, और 2% मशीन सी ने बनाया। तो ऑलरेडी 5% डिफेक्टिव बोल्ट तो मशीन ए ने ही बनाया है ना। सो A by E1, इसका मतलब क्या है, ए मतलब है डिफेक्टिव बोल्ट, किसने बनाया है, E1, दैट मींस मशीन ए ने बनाया है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है ना 5%, दैट मींस 5/100 है ना ये। P ऑफ A by E2 क्या होगा, 4%, दैट मींस डायरेक्ट गिवन ही तो है ना। और P ऑफ A by E3 क्या होगा, यहां पर 2%, दैट मींस 2/100, है कि नहीं। ये तो डायरेक्ट डिफेक्टिव बोल्ट्स का क्वांटिटी तो आपको दिया गया है, और क्या चाहिए, है कि नहीं। यहां पर तो क्वेश्चन में ऐसे बोला ही गया कि 5% डिफेक्टिव बोल्ट किसने बनाया, मशीन ए ने बनाया है। तो इसका मतलब ही तो ये है A by E1, इसका मतलब क्या है कि डिफेक्टिव बोल्ट है, किसने बनाया, ए ने बनाया। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में 5% तो दिया ही गया है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी गिवन है, 5% डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी है। सो P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3। कैलकुलेशन कर लो, P of E1 that means 25/100 into 5/100 plus 35/100 into 4/100 plus 40/100 into 2/100, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा कैंसलेशन तो आपको करना है, ठीक है। इधर इधर है एक कैंसल, इधर 5 है कि नहीं, और इधर भी 2 और इधर
डायरेक्ट 25 है कि नहीं? तो क्या आएगा 1/80 प्लस 7/500 प्लस 1/125 है कि नहीं? तो इसका एलसीएम बुलसियम करके आपको 345/1 ये आंसर मिलेगा. 345/10,000. This answer is the required answer. Just you can solve this answer. Okay, you can solve this question. We'll get the final result. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. A person has undertaken a construction job. A person has undertaken a person has undertaken a construction job. A person has undertaken a construction job. ठीक है, construction job. The probabilities are are 0.65 that there will be strike. There will be strike. 0.80 that construction job will be completed on time if there is no strike. A person has undertaken the construction job. The probabilities are 0.565 there will be strike, and 0.80 that the construction job will be, and 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike. Completed on time if there is no strike. Okay, if there is, and 0.32% and 0.32 that construction job will be completed if there is a strike. If there is a strike, determine the probability that the construction job will be completed on time. Determine the probability that the job will be completed on time. That means यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन जब है, that means वो बिल्डर है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन करना है. अब कंस्ट्रक्शन जो करेगा, a person undertaken the construction job, the probability is that 0.65 that
द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक होगा, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.65 इसका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन में बोला है कि स्ट्राइक होगा 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike. अगर स्ट्राइक ना हो तो ये कंस्ट्रक्शन जॉब जो है वो 0.80 मतलब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी 0.80 है, ठीक है। अगर यहां पर स्ट्राइक हो जाए तो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी यहां पर 0.32 है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दैट द जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, टाइम में ये जॉब जो है वो कंप्लीट होगा, स्ट्राइक हो या ना हो उसका, ठीक है। स्ट्राइक हो ना हो ये मुझे नहीं देखना है, ठीक है। ये जॉब जो है टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास दो केस है, स्ट्राइक हो तो जॉब कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी 0.80, स्ट्राइक ना हो ना, अगर स्ट्राइक ना हो तो 0.80 होगा जॉब कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी। अगर स्ट्राइक हो जाए देन 0.32 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस जॉब, ओके। बट काम तो कंप्लीट होगा, स्ट्राइक हो ना हो प्रोबेबिलिटी आपको दिया गया है कि अगर स्ट्राइक हो जाए तो प्रोबेबिलिटी है 0.32। अच्छा ठीक है, 0.32 ये प्रोबेबिलिटी है, काम खत्म हो जाएगा। अगर स्ट्राइक ना हो तो 80 दैट मींस टाइम ज्यादा मिलेगा ना, तो 0.80 प्रोबेबिलिटी है कि आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन काम तो खत्म आपको करना ही है कि नहीं। तो यहां पर इवेंट्स क्या क्या है, हियर A equals to job will be completed on time, ठीक है। तो E1 क्या है, there will be स्ट्राइक होगा, है कि नहीं, स्ट्राइक होगा। सो P ऑफ E1 क्या दिया गया, स्ट्राइक होने का प्रोबेबिलिटी 0.65 दैट मींस 65/100, ठीक है। सेकंड डिपेंड दैट मींस ये पूरा क्वेश्चन जो है ये एक बार स्ट्राइक अगर हो तो क्या होगा, स्ट्राइक अगर ना हो तो क्या होगा। तो स्ट्राइक नहीं होने का प्रोबेबिलिटी यहां पर तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, हम लोग एज्यूम कर लेंगे E2 देयर विल बी नो स्ट्राइक, देयर विल बी no strike, E2 there will not be strike, उसका प्रोबेबिलिटी P ऑफ E2 कैसे निकालेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट है 1 माइनस P ऑफ E1। स्ट्राइक होगा और स्ट्राइक नहीं होगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट है ना। सो 1 माइनस 65/100 दैट मीन्स 35/100, ये आपका E1 और E2 मिल गया। अब जो है देखो P ऑफ A बाई E1 ये क्या होगा, E1 क्या है, स्ट्राइक होगा, E1 क्या है, स्ट्राइक होगा। A क्या है, जॉब कंप्लीट होगा। प्रोबेबिलिटी कितना दिया है क्वेश्चन में 0.80 that the construction job will be completed on time if there is a strike, if there is no strike, और ये 0.32 ये है प्रोबेबिलिटी जब कंस्ट्रक्शन जॉब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इफ देयर इज a स्ट्राइक अगर हो तो 0.32 प्रोबेबिलिटी है। तो ये A बाई E1 क्या है, E1 है स्ट्राइक होगा, A क्या है, जॉब कंप्लीट होगा। तो इसका 0.32 है ना, देखो तो ये क्या है, 0.32 नहीं है क्या, तो दैट मींस 32/100। P ऑफ A बाई E2 क्या है, E2 मतलब क्या है, स्ट्राइक नहीं होगा। A क्या है, फेवरेबल क्या है, जॉब कंप्लीट होगा। तो आपको दोनों ही कंसीडर करना है, स्ट्राइक भी नहीं होगा
और जॉब भी कंप्लीट होगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दिया गया था शायद 0.80। देखो क्वेश्चन में देखो 0.80, it will be the probability that this construction job will be completed if there will be no strike। अगर स्ट्राइक ना हो तो 0.80 होगा प्रोबेबिलिटी जॉब खत्म होने के लिए। तो 0.80 दैट मींस 80/100। सो बस हो गया। अब इसका मतलब P of A निकाल लो। सो P of A equals to P of E1 into P of A/1। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना ये सब। P of E2 into P of A/E2। बस P of E1 65/100 into A/E1 कितना मिला 32/100 प्लस 35/100 into 80/100। बस इसका भी कैलकुलेशन करके देख लो कितना है आंसर। इसका कैलकुलेशन करके ऐसा कुछ आएगा 488/1 ये। ठीक है, ठीक है। सो these are the of total probability questions, and these questions are very very important, and I think the Bayes theorem solutions you will get this law of total probability concept again, and this concept will be introduced again. Okay, so in the from the next lecture we will start this Bayes theorem, and if any questions will be left from this law of total probability, I will check whether any questions is left or not. If any questions is left, then it will be discussed in the next lecture, and in the next lecture this Bayes theorem will be started. Just be ready for this thing. Okay, and a very interesting lecture, very interesting concepts also, this Bayes theorem. Okay, so let's see in the that means let us meet in the next lecture as well. Okay, thank you very much for joining my classes. Bye and Jai.